नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स। यूक्रेन युद्ध के बीच ऑस्ट्रिया के दौरे पर पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस से सस्ता तेल खरीदने पर अपने जोरदार तर्कों और इतिहास के तथ्यों की याद दिलाकर यूरोपीय और पश्चिमी देशों का मुंह बंद कर दिया है। आपको बता दें कि भारतीय विदेश मंत्री ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि यूरोप ने भारत के मुकाबले 6 गुना अधिक तेल रूस से खरीदा है। जयशंकर ने यूरोपीय देशों और भारतीय जनता की तुलना करते हुए कहा है कि भारत की 1 अरब 40 करोड़ की आबादी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो महंगा तेल खरीद सके। जयशंकर के इस बयान की दुनिया भर में जमकर तारीफ हो रही है। नीदरलैंड के भारत में राजदूत रह चुके फोन्स स्टॉयलिंगा ने कहा है कि जयशंकर अपने पश्चिमी देशों को इतिहास और अर्थव्यवस्था सिखा रहा है। नीदरलैंड के भारत में पूर्व राजदूत फोन्स स्टॉयलिंगा ने ट्वीट कर कहा कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का शानदार प्रदर्शन पश्चिमी देशों को इतिहास और अर्थव्यवस्था का कुछ पाठ पढ़ाया। आपको बता दें कि एस जयशंकर के इस बयान की सोशल मीडिया में जमकर तारीफ हो रही है। एक सोशल मीडिया यूजर आशुतोष झा ने लिखा कि जयशंकर ने अपने बयान में क्या शानदार स्पष्टता दिखाई। भारत को अब तक दुनिया का सबसे बुद्धिमान विदेश मंत्री मिल ही गया। ह्यूमन नामक एक यूजर ने लिखा, अगर आप कठिन और अचानक पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देने का तरीका सीखना चाहते हैं तो आपको विदेश मंत्री एस जयशंकर को सुनना चाहिए। विदेश मंत्री जयशंकर ने बुधवार को पश्चिमी शक्तियों के असंतोष के बावजूद रूस से कच्चे तेल का आयात करने के भारत के कदम का बचाव करते हुए कहा था कि यूरोप ने फरवरी 2022 में भारत की तुलना में रूस से जीवाश्म ईंधन का 6 गुना अधिक आयात किया है। यूरोप के 2 देशों को अपनी यात्रा के दूसरे चरण में साइप्रस से यहां पहुंचकर जयशंकर ने यह भी कहा कि यूरोपीय राजनीतिक नेतृत्व अपनी आबादी पर रूस यूक्रेन संघर्ष के प्रभाव को कम करना चाहेगा और ये एक विशेष अधिकार है जिसे उन्हें अन्य राजनीतिक नेतृत्व तक का भी विस्तारित करना चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने इंटरव्यू के दौरान क्या कुछ कहा है। But still making sure that Europe is not freezing to death in the winter, or just increasing your imports by 5 times? No, Europe has managed to reduce its imports while doing it in a manner in which it is comfortable for Europe. No, comfortable. If that comfortable, it's manageable. No, it's manageable. Maybe a little bit of an it's manageable. Now, if at 60,000 euros or whatever is your per capita income, you are so caring about your population. I have a population at $2,000. I also need energy. I'm not in a position to pay high prices. The price of oil has doubled. So, and what Europe is doing is also moving into the Middle East and diverting production out of the Middle East into Europe and raising prices. So European actions actually are putting pressure on the global oil markets and on my imports as well. So I think it's something which, if European political leadership understandably would like to soften the impact on their population, I think it's a privilege they should extend to other political leaderships as well. Are you reluctant toward Moscow as well, because Russia is India's most important supplier of weapons and military equipment? And therefore? Are you reluctant to criticize Moscow? No, I think, look, we have a relationship with Moscow. We've had a long-term relationship with Moscow. I think it's important to look at that history of the relationship. It was a relationship built in a period when Western democracies used to arm a military dictatorship called Pakistan and deny India defensive weapons. So if we are talking about principles, let's talk a little bit of history out here. So how did the Indian exposure to Russia and previously to Soviet Union get built up? Because the Western democracies, for whatever reason, decided that their natural partner in our part of the world was a military dictatorship. Would you consider India an ally of Russia? No, I think India doesn't. We are an independent country. We do not define ourselves or perceive ourselves in alliance terms. That's very much a Western terminology. It's not a term that we use. ये जो इंटरव्यू अभी आपने देखा, ये सोमवार को ऑस्ट्रिया के राष्ट्रीय प्रसारक ORF द्वारा किया जा रहा था। इस इंटरव्यू में विदेश मंत्री एस जयशंकर को आप सुन सकते हैं कि कैसे उन्होंने यूरोपीय और पश्चिमी देशों का मुंह बंद कर दिया। एस जयशंकर ने कहा कि यूरोप अपने आयात को आरामदायक तरीके से कम करने के लिए कामयाब रहा है। 60,000 यूरो
पर आप अपनी जनसंख्या के बारे में इतनी परवाह कर रहे हैं तो मेरे यहाँ 2000 अमेरिकी डॉलर की आय वाली आबादी है। मुझे भी ऊर्जा की आवश्यकता है और मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि तेल के लिए ऊंची कीमत चुका सकूँ। जयशंकर ने यह भी कहा कि फरवरी 2022 से यूरोप ने भारत की तुलना में रूस से 6 गुना अधिक ऊर्जा का आयात किया है। विदेश मंत्री ने आगे के एक सवाल के जवाब में कहा, अगर ये सिद्धांत की बात थी तो यूरोप ने 25 फरवरी को मॉस्को से बिजली क्यों बंद नहीं की? रूसी तेल के लिए भारत की चाहत तब से बढ़ गई है जब से मॉस्को ने इस पर छूट देनी शुरू की है। पश्चिम ने यूक्रेन पर हमले के चलते रूस को दंडित करने के लिए उसके तेल का त्याग किया है। खैर, विदेश मंत्री के दिए गए इस बयान की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है और शायद यूरोपीय और पश्चिमी देशों को जयशंकर की ये बात समझ भी आ गई होगी कि ये भारत अब बदल चुका है और अपने फैसले खुद लेना जानता है। अगर फैसलों पर कोई सवाल भी करता है तो उसका जवाब कैसे देना है ये भी उसे अच्छी तरीके से आता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद।